Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again, and this time we meet for the comparative part of analysis of financial statements. Without much ado or wait, very quickly let me remind you कि ये बैलेंस शीट है. हम करीबन आई गेस 28-29 लेक्चर से मिल रहे हैं, तो दैट्स अ लॉन्ग टाइम. मैंने इतनी बार उसको रिपीट किया है कि ये चैप्टर क्या है, वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स. नाउ देयर आर क्वेश्चंस जहाँ पे वर्टिकल करना है, देयर आर क्वेश्चंस जहाँ पे वर्टिकल करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना है. ओके, जब आप वर्टिकल करते हो तो वो एनालाइज हो जाता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज में आता है. जब आप उसको इंटरप्रेट करते हो तो अलग अलग कैलकुलेशंस आते हैं. कॉमन साइज अलग था, कंपेरेटिव अलग है. बैलेंस शीट का कॉमन साइज कंपेरेटिव अलग है, इनकम स्टेटमेंट का अलग है. टुडे वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कंपेरेटिव बैलेंस शीट. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डज नॉट हैव अ क्वेश्चन नंबर इन द टेक्स्ट बुक. थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उन्होंने एज एन एग्जाम्पल सॉल्व किया है. ओके, बट इट इज़ अ गुड क्वेश्चन. तो मैं भी सॉल्व करके एक्सप्लेन करके जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो मैं कर रहा हूँ. ओके, सो अगेन टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं है. क्या आप इन द बुक्स ऑफ या पेज नंबर के हिसाब से आप इसको ढूंढ सकते हो. ओके, क्विकली इट सेज अबाउट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ नोहा टेक्सटाइल लिमिटेड. सो ऑन दिस पर्टिकुलर पेज अगर आपको ये क्वेश्चन ढूंढना है, प्लीज सर्च नोहा टेक्सटाइल लिमिटेड. ओके, हेड. सो मैं ऑल ऑफ अ सडनली ना थोड़ा फेर हो गया. दैट इज़ बिकॉज ना कैमरा पे ISO हमने इंक्रीज किया. ओके, सो द इमेज डजंट लुक अ लॉट डार्क. जब पीछे का बहुत फेर है तो हम थोड़े काली नज़र आते हैं. So above it says there are 2 years balance sheets given. The first line above is comparative balance sheet and comment upon the changes. ये जो पार्ट है कमेंट का, ये हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज फॉर योर सिलेबस उतना ज़रूरी नहीं है. कैलकुलेट करो कंपेरेटिव करके, वो डेफिनेटली ज़रूर है. ओके, टेक्स्ट बुक में ये जो कमेंट है ये दिए गए हैं. इफ़ यू वंडर सर कमेंट का मतलब क्या होता है, एक फुटबॉल मैच में, एक क्रिकेट मैच में कमेंट्री क्या होता है, जो सामने है टीवी स्क्रीन पे या ग्राउंड पे है, जो हो रहा है,
उसको आप बोलो, ओके, तो वो ऑडियो में सुनाई देता है, ओके। सो सिमिलरली जो सोल्यूशन आपके सामने है उसको आप बोलो, डायलॉग में बोलो, ओके, कि शेयर कैपिटल इंक्रीज हो चुका है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज कंपेरेटिव ना, इंक्रीज डिक्रीज, so that's exactly what is comment. So right now I repeat myself, don't worry about the comment, do worry about the comparative, that is the numerical calculation, okay। right now just to read about, to analyze कौन सा आइटम किस कैटेगरी में जाएगा। फर्स्ट आइटम करंट लाइबिलिटी, वो करंट लाइबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल में जाएगा। रिजर्व वो शेयर होल्डर्स फंड्स में, रिजर्व एंड सरप्लस। बैंक लोन बोरोड फंड में जाएगा। शेयर कैपिटल इज शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड्स। अगेन व्हाट आर वी डूइंग, वी आर डूइंग एनालिसिस कैटेगरी कि ये कौन से कैटेगरी का चीज है। फिक्स्ड एसेट लेस अक्यूमुलेटेड का मतलब है जहां पे पानी जमा होता है ना बरसात में, उसको कहते हैं अक्यूमुलेशन, जमा होना। यहाँ पे क्या जमा हो रहा है, डेप्रीसिएशन। तो बेसिकली डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो ये जो नीचे है ना 10 लाख 15 लाख मेरे ऊपर, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट, बट दैट इज प्रेजेंट टेंस फिक्स्ड एसेट। ऊपर वाला फिक्स्ड एसेट इज पास्ट टेंस, उसको कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। और नीचे वाला का मतलब 10 लाख, दैट इज प्रेजेंट टेंस, उसको कहते हैं WDV, रिटन डाउन वैल्यू। बेसिकली पूरा तमाशा फिक्स्ड एसेट में होगा। एंड देन द लास्ट थिंग करंट एसेट, वो वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। सो आई रिपीट माई सेल्फ, नथिंग डिफिकल्ट, वी आर डूइंग अ वर्टिकल कंपेरेटिव बैलेंस शीट, वी आर डूइंग अ वर्टिकल कंपेरेटिव बैलेंस शीट, ओके, जिसमें पहले ये चीजें हम वर्टिकल करेंगे तो एनालिसिस हो जाएगा, बाद में उसका जो कनेक्टेड कैलकुलेशन है वो करेंगे तो फिर इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। वेल लेट मी शो यू। ओके, सो मैं तो उस तरफ चले जाता हूँ सो दैट ऑटोमेटिकली द विजिबिलिटी इज देयर। हाँ, सो प्लीज राइट इन द बुक्स ऑफ नोहा टेक्सटाइल लिमिटेड 4 columns are to be required, पहले तो particulars then 4 columns। so first year, second year, first year is called as base year, very important है, first year is called as base year, and then the last 2 columns ये जो ऊपर है increase decrease rupees, and the next one is increase decrease percentage, which I hope clear है, okay, it's not confusing for you। हाँ, so ये पूरा presentation आप ready रखो around for 1 page, not more than that, 1 page। then a few things जो आपको पता होनी चाहिए, okay, now what are that, structure क्या है इसका, ऊपर से नीचे तक structure क्या है। well first is sources of funds, now ये पुरानी बात है, it's not new but just reminding you। then there is application of funds, one part of vertical balance sheet, not normal balance sheet, vertical balance sheet is sources, पैसा कहाँ से आया, एंड द अदर पार्ट इज एप्लीकेशन, पैसा कहाँ पे खर्चा किया। सोर्सेस के अंदर देर आर 2 पार्ट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब पैसा शेयर होल्डर से आया, या बोरोड फंड्स बाहर से आया। एप्लीकेशन के अंदर देर आर 3 पार्ट्स, आज के प्रॉब्लम में 2 है। फर्स्ट पार्ट इज फिक्स्ड एसेट कि हमने खर्चा फिक्स्ड एसेट्स पे किया, यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट बिकॉज यहाँ पे डिप्रीसिएशन का कुछ चक्कर है, एंड द अदर इज वर्किंग कैपिटल, ओके। Now for this problem you don't have to say वो बीच में कितना लाइन खाली रखना है। See right now don't worry, right now आप फर्स्ट 2 लाइन लिख लो, sources of funds, in that A shareholders funds। now if you look at your question, again textbook में तो question available है, current liability ऊपर वो भी नहीं आएगा, वो आएगा वर्किंग कैपिटल में, पहले आएगा शेयर कैपिटल, ओके, ऊपर है 5 लाख 10 lakh। तो you please write with me, what are you doing right now, you are doing analysis। जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करो तो वो इंटरप्रिटेशन बन जाता है, ओके। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस ऊपर है, ऑब्वियसली ये ऊपर का चीज़ ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में आप कर रहे हो 3 लाख 2 लाख, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है। व्हाट गड़बड़ डू आई मीन, इट इज़ डिक्रीजिंग, share capital is increasing but reserve is decreasing,
ओके हाँ, सो द टोटल ऑफ दिस देर इज समथिंग कॉल्ड एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बट वो तो आपने आज तक देखा भी नहीं होगा। ओके एटलीस्ट मे बी आपके लेवल के लिए अब तक वो दिया नहीं है। तो a प्लस बी बिकम्स मतलब स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, नॉट कैपिटल, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी विल गिव यू शेयर होल्डर का पैसा 8 lakhs एंड 12 lakhs। ओके ना व्हेन आई से क्वेश्चन ने क्या कहा, कमेंट करो। अभी कमेंट का मतलब क्या है, आपको शेयर कैपिटल बढ़ता हुआ दिख रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। हाँ सर पहले 5 लाख था फिर 10 लाख हो गया, क्यों हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स, नए शेयर्स बेचे हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गया, क्यों हो गया, मे बी ड्यूरिंग द ईयर लॉस हो गया रहेगा, क्योंकि जब लॉस होता है तो ही आपके रिजर्व का मतलब आपके जेब का पैसा कम हो जाएगा ना, तो उसका मतलब कमेंट है। ओके मतलब कितने लोग ना अगर मैच देखेंगे, बट ना अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट सीन द गेम ऑफ क्रिकेट और टेनिस और फुटबॉल पॉसिबल, उनके कंट्री में वो नहीं प्ले होता। सो द कॉमेंटेटर व्हाट ही सेज लुकिंग एट द सिचुएशन, वो उनको समझ में आता है। सो समथिंग लाइक दैट ओनली यार, देयर आर मेनी पीपल जो देखिए हाँ शेयर कैपिटल, हाँ रिजर्व एंड सरप्लस, बस बस बस, अरे उसका मतलब क्या है, उसका इंक्रीज डिक्रीज का रीजन क्या है, दैट इज व्हाट कमेंट एक्सप्लेन्स। ओके नेक्स्ट, बोरोड फंड के अंदर बैंक लोन अबाउ इट इज गिवन 5 lakh and 8 lakh. So I'm very quickly, very simply writing that there is nothing else in borrowed fund. तो यही टोटल है। B, अभी ये A प्लस बी को आप ऐड करोगे, आई रिपीट कैपिटल A प्लस कैपिटल, यू गेट टोटल फंड रेज्ड, जमा किया A प्लस बी कैपिटल A प्लस बी 13 lakhs 20 lakhs। दिस इज वन साइड, एक तरफ, एक हिस्सा ऑफ योर वर्टिकल बैलेंस शीट। दूसरा हिस्सा इज द एप्लीकेशन, उसके अंदर फिक्स्ड एसेट एंड टुडे कुछ अजीब दिया है। द फर्स्ट लाइन अबाउ यू सी इज फिक्स्ड एसेट, कितना दिया 12 lakh 18 lakh, बट उसमें से डेप्रीसिएशन, दे यूज द वर्ड अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, मतलब पूरा डेप्रीसिएशन, फर्स्ट डे से आज तक का पूरा डेप्रीसिएशन, उसको कहते हैं अक्यूमुलेटेड। वो माइनस होता है, फिर जो आएगा उसको कहते हैं वही फिक्स्ड एसेट है, बट वो है करंट वैल्यू, टुडेज वैल्यू। नाउ ऑल ऑफ दिस इज टू बी रिटन इन फिक्स्ड एसेट। पहले लाइन में आएगा ओरिजिनल कॉस्ट विच इज व्हाट आई एम राइटिंग 12 lakh minus the depreciation, they use the word accumulated, I am using the same word, 2 lakh 3 lakh, and then you still get fixed asset. The only difference is the word that you use is WDV, written down value. Okay, WDV written means today's value. 10 lakhs 15 lakhs, simply put ये फिक्स्ड एसेट का आंसर है। अब आएगा वर्किंग कैपिटल, जिसमें आएगा करंट एसेट, जो मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूं ऊपर, वेल उधर है 5 lakh and 9 lakh। लेट मी राइट इट, 5 lakh 9 lakh। आप लोग कॉपी कर लो जब भी टाइम परमिट करे, अगर अभी स्पीड से कर सकते हो तो अभी कर लो। एंड देन करंट लाइबिलिटी which is above me, first line 2 lakh and 4 lakh. Okay, hopefully everything is clear cut to you, okay, because मैं obviously ना वो एरिया में नहीं हूँ। Now the subtraction between this, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब है द मनी दैट यूर, पैसों की जो जरूरत पड़ती है कंपनी को 1 साल चलाने के लिए, 1 साल चलाने के लिए, तो उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वो है CA माइनस CL, तो 5 लाख माइनस 2 लाख, 9 लाख माइनस 4 लाख, दैट इज इट। पॉइंट ए फिक्स्ड एसेट, पॉइंट बी वर्किंग कैपिटल। ऐड करो, बिकॉज व्हेन यू ऐड यू गेट टोटल फंड्स एम्प्लॉयड विच शुड मैच विद द अबाउ टोटल फंड रेज्ड। नहीं मैच होगा तो वेरी सिंपली पुट गलत है। गलत है मतलब या तो हमारा सोल्यूशन गलत है, या तो मे बी क्वेश्चन में कुछ गलत हो सकता है, मे बी। ओके, एनालिसिस तो हो गया बिकॉज ना हमने सब रीपोजिशन कर दिया। नाउ व्हाट टू डू, अभी इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। अच्छा, पहला है इंक्रीज डिक्रीज, रुपीज में कितना हुआ। देखो ऊपर से स्टार्ट करते हैं,
शेयर कैपिटल 5 लाख से 10 लाख, तो 5 लाख बढ़ गया, इंक्रीज। रिजर्व डिक्रीज हो गया, तो वो ना आप ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट। देन टोटल 8 लाख 12 लाख, 4 लाख बढ़ गया। बैंक लोन इंक्रीज, 3 लाख बढ़ गया। टोटल फंड में जो बदलाव आया है वो भी तो इंक्रीज है, 7 लाख का। सो इफ इट इज अ डिक्रीज यू राइट इट इन ब्रैकेट्स, तो वो नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। देन कमिंग डाउन, फिक्स्ड एसेट का ओरिजिनल पास्ट का कॉस्ट इंक्रीज होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सम ऑफ यू में भी कंफ्यूज, सर वो माइनस है, वो नेगेटिव नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो माइनस है, वो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव होना और एक माइनस साइन आपके बगल में होना दो अलग चीजें हैं। तो डेप्रिसिएशन इज अ पॉजिटिव नंबर, इट इज जस्ट दैट ऊपर के नंबर से उसको माइनस करना है। पहले था 2 लाख, बाद में बन गया 3 लाख, तो माय डियर इंक्रीज ऑफ 1 लाख। WDV वो भी तो इंक्रीज है 5 लाख का। करंट एसेट इज इंक्रीज बाय 4 लाख, करंट लाइबिलिटी इज इंक्रीज बाय 2 लाख एंड ऑल्सो वर्किंग कैपिटल। टोटल फंड एम्प्लॉयड एंड टोटल फंड रेज तो सेम ही रहेगा। दिस इज first part of your interpretation. Your second part is converting these increases and decreases in percentages, because I have told you so many times percentage लोगों को थोड़ा simple style में समझ में आता है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख ये उनको थोड़ा मुश्किल है डाइजेस्ट करने में। How do you convert the increase and decrease into percentage? Well, for that there's a formula. Amount of increase decrease into 100 upon base year amount. The first year is the base year, meaning what? Share capital increase decrease 5 लाख है, बेस ईयर का अमाउंट भी 5 लाख है, तो परसेंटेज में कितना आएगा? अरे वेरी सिंपल, 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, बेसिकली वही मतलब है ना, 5 लाख अपॉन 5 लाख बेस इंटू 100, तो 100 आएगा, तो 100%। ज़्यादा सोचने का नहीं, 100 लिख लो, ऊपर परसेंटेज डाला है बस 100। ओके, टेक्स्ट बुक में दे राइट 100% इंक्रीज, दैट इज फाइन, आप इंक्रीज भी लिख सकते हो, डोंट वरी, नहीं लिखेगा तो मार्क्स नहीं जाएगा, बिकॉज व्हेन इट इज अ पॉजिटिव नंबर 100 इट मीन्स इंक्रीज। डिक्रीज होगा तो आप ब्रैकेट में, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, अभी उसका इंक्रीज नहीं डिक्रीज 1 लाख है। सो इफ आई डू फॉर रिजर्व एंड सरप्लस जस्ट अबाउ मी, व्हाट डू यू गेट? नेगेटिव 1 लाख अपॉन 3 लाख, बेस अमाउंट इज 3 लाख, हाउ मच डू यू गेट? 33.33 नेगेटिव, तो उसका मतलब डिक्रीज ही होता है, वेरी सिंपली पुट। और जो अभी टोटल है शेयर होल्डर्स फंड्स, टोटल 4 लाख इज इंक्रीज, 4 लाख इज इंक्रीज हियर। सो अपॉन आई थिंक 8 लाख, क्योंकि वो द बेस ईयर्स अमाउंट वाज 8 लाख। सो हाउ मच डू यू गेट? इंक्रीज ऑफ 50%, इंक्रीज ऑफ 50%। तो प्लीज ये कॉपी कर लेना, मैं तो आंसर लिख लेता हूं। हाँ, फिर आता है बैंक लोन। एवरी टाइम प्लीज राइट द फॉर्मूला, प्रूव इट टू द एग्जामिनर, दिस इज हाउ आई हैव गॉट द आंसर। ओके, क्योंकि आजकल सभी चीज़ों के लिए प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आप जिंदा हो, आप मर गए, आप पैदा हुए, आप मर गए, सब चीज़ के लिए प्रूफ की ज़रूरत है। यू मस्ट हैव द वर्किंग एज द प्रूफ। देन बैंक लोन, वो भी तो 3 लाख बढ़ गया, वो भी 3 लाख बढ़ गया, तो वो थोड़ा ऊपर में लिख रहा हूँ। बेस अमाउंट 5 लाख का है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का अमाउंट बेस अमाउंट होता है। 60 डेसिमल में नहीं आ रहा है, आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिखो, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके। द टोटल फंड रेज्ड has increased by 7 lakhs on a base of 13 lakhs. Now ये टोटल फंड रेस के लिए भी आएगा और टोटल फंड एम्प्लॉयड के लिए भी आएगा, तो आई विल नॉट डू एम्प्लॉयड के लिए अलग से। 7 लाख अपॉन 13 लाख, 53.85. ओके, ऑब्वियसली दिस इज नॉट बाय हार्टेड, इट हैज बीन सॉल्व्ड, विच यू हैव टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन सॉल्व इट अलग से। 53.85%, एवरीथिंग विच वी आर डूइंग इज into 100, तो it has to be a percentage। एक साइड हो गया। मूविंग ऑन टू द फिक्स्ड एसेट, whether you go to the other side, every line you do the same calculation।
सो राइट नाउ फिक्स्ड एसेट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका इंक्रीज है 6 lakhs, द बेस इज 12 lakh, तो 6 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100 एकदम एग्जैक्ट 50% आता है, एग्जैक्ट 50%। इनफैक्ट उसके बाद जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है उसका इंक्रीज भी 1 लाख है, इंक्रीज 1 लाख है, बेस 2 लाख है, तो ये भी आपको एग्जैक्टली 50 ही आता है। एंड WDV बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू फिक्स्ड एसेट, एवरीथिंग, द ओरिजिनल कॉस्ट इज द पास्ट वैल्यू, द WDV इज द करंट वैल्यू। इसका इंक्रीज 5 लाख ऑन अ बेस ऑफ 10 लाख, बेस अमाउंट ऑफ 10 लाख, तो तीनों 50 50 50 एंड दिस इज व्हाट इज द आंसर। ओके, सो आई जस्ट राइट ऑल 3 ऑफ देम। सो आप भी ये कर लो। देन कम्स वर्किंग कैपिटल, वो थोड़ा अलग है। करंट एसेट इंक्रीज ऑफ 4 लाख एंड द बेस इज 5 लाख। अगेन बाय हार्ट तो नहीं कर सकते हैं, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। सो 4 लाख अपॉन 5 लाख, समथिंग इन डेसिमल आई थिंक सो आ जाएगा, सॉरी एग्जैक्टली आया 80%। ओके दैट्स गुड, डेसिमल में आएगा तो फिर उतना ज़्यादा काम हमारा बढ़ जाता है। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज 2 लाख का, बेस भी 2 लाख का। ये कैलकुलेशन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कर सकते हो, यू विल गेट एग्जैक्ट 100 बिकॉज इट्स द सेम नंबर दैट इज बीइंग डिवाइडेड एज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो 100 आ जाएगा। एंड लास्टली वर्किंग कैपिटल विच इज 2 लाख अपॉन 3 लाख। So there goes 66.67%. okay, उसके बाद है फिक्स्ड टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, बट देन वो ऑलरेडी हो चुका है अगर आप नज़र दो ऊपर। सो दैट विल बी 53.85. सो राइट नाउ इट इज 66.67 एंड लास्टली इज 53.85. दिस क्वेश्चन इज गिवन मोर सो दैट यू कैन बी टोल्ड कि ये कमेंट बाजी क्या होती है। ओके, सो अगर कोई इंक्रीज हुआ उसका रीज़न क्या था। जैसे आप बैंक लोन को देखो तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बैंक लोन, इट हैज़ इंक्रीज बाय 3 लाख। नाउ देयर आर डिफरेंट रीजंस, अलग लोग 5 उंगलियां सेम नहीं होती ना, 5 लोग अलग अलग सोचेंगे। कोई बोलेगा सर इंटरेस्ट के वजह से बढ़ गया, कोई कहेगा सर ज़्यादा लोन लिया होगा। मैं सपोर्ट करूँगा दूसरे को, क्योंकि 5 लाख का लोन अगर वो 8 लाख होता है, 3 लाख इंटरेस्ट इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में इट्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट नॉट 3 लाख रुपया। ओके, तो आई वुड से कि एक्स्ट्रा लोन लिया होगा, इसके लिए इट हैज़ इंक्रीज। सो दैट यू हैव गॉट टू राइट, ओके, दैट एडिशनल लोन हैज़ टेकन, देयरफॉर देयर इज एन इंक्रीज इन बैंक लोन। ओके, सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज कमेंट टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। व्हाट आई हैड टू डू फॉर यू was to explain the numerical part, which I hope is seen by you, understood by you, और आपने ये लिख लिया होगा। Okay, I'll change my position and I'll change the scene behind and quickly remind you, if you did understand the entire explanation, please do like the lecture video. सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, शेयर कर लीजिए ये लेक्चर और बाकी सारे लेक्चर्स इंडिविजुअली करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट आता है चैनल के ऊपर, वो प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हो ताकि आपके दोस्तों को, दोस्त हू डोंट नो अबाउट द चैनल, उन्हें चैनल के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको पता चले चैनल के बारे में, वो सब्सक्राइब करे, वो मेंबर बन जाए। मेंबर मतलब वो जुड़ जाए। ओके, दैट्स एज सिंपल एज दैट एंड दे यूटिलाइज द फ्री लेक्चर्स दैट आर बीइंग पुट अप ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। ओके, टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखना। आपका दिन बड़ा अच्छा जाए, ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस वंस अगेन, बाय फॉर नाउ।